Good morning, dear students. Today we will start chapter 6 triangles. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं triangles में there are three sides and the angles of in a triangle is 180 degree. So the first concept comes in chapter 6 is the congruency. If two figures are congruent, which means as you have studied about congruency in class 9, what do we know about congruency of two figures? If two figures are congruent to each other, then there is some definition of a congruency of two polygons. So, two figures are congruent figures if they have same shape and the same size. It means, suppose this is a triangle ABC with 3 centimeters of side. यहाँ एक दूसरा ट्रायंगल है So these two figures are, we can say that these are congruent because these have the same shape and size of this triangle is equal to the side of this triangle. देखो यहाँ पे this is a PQRS. Suppose this triangle is PQR and this is ABC. We can see that these two triangles are congruent to each other because they have same size and same shape. अगर दो फिगर अगर आपको दिया हुआ है, they will be congruent to each other if they have same shape and same size. अगर ये दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट है दो फिगर्स के केस में, then those two figures will be known as congruent figures. Congruent figures का ये definition है. So similar figures का definition क्या है? Two figures are said to be similar if they have same shape and need not to have same size. ठीक है? जैसे कि suppose this is a square of 1 centimeter and this is a square of 2 centimeter. Assume this as square. So look at these two figures. This will be similar because this is not same. This is not 1 centimeter. This is 2 centimeter. Also, all the sides are not equal, but shape is same. Shape यहाँ पर क्या है? Same. अगर ये स्क्वायर है, तो ये भी क्या है? स्क्वायर है. But their lengths are not equal. यहाँ पर 1 centimeter है, यहाँ पे 2 centimeter. That is why in the case of a similar figure, we can say that two figures are said to be similar if they have same shape and need not to have same size. तो size यहाँ पे same होगा, ये important नहीं है. अगर दोनों का shape same है, then we can say that this is a similar figure. So overall हम क्या बोल सकते हैं? Overall we can say that all congruent figures are similar, but all similar figures
need not be congruent. इसका मतलब क्या है? Two figures if this is a ABCD, figure 1 is ABCD and this is a PQRS. Look here, line segment of ABCD is equal to the line segment of PQRS. इस केस में क्या होता है? ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, बिकॉज देयर लाइन आर इक्वल. ठीक है, लाइन सेगमेंट यहाँ इक्वल है, सो दैट शेप भी यहाँ पर क्या है? इक्वल है. Based on these two properties, we can say that these figures are congruent figures. Look at these two figures. यहाँ पर देखो, दोनों ही फिगर क्या है? सिमिलर है. सिमिलर इन द सेंस दोनों ही क्या है? रेक्टेंगल है. बट जो लाइन सेगमेंट है, जो लॉन्गर लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर वाला और 3 सेंटीमीटर वाला, ये क्या है? अलग अलग है. ठीक है, सो प्रॉपर्टी वाइज दोनों तो सेम है, शेप तो सेम है, बट साइज जो है वो अलग अलग है. तो ये कौन सा फिगर होगा? दिस विल बी सिमिलर फिगर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो इन दिस वे वी कैन से दैट ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. ठीक है, बट ऑल द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. इस तरह से हम लोग इसको नोट कर लेंगे. टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड. सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब होता है अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड है, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसके साथ कोई दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ही क्या है? इक्वल साइड वाले पॉलीगन है. दोनों ही अगर सिमिलर होंगे तो किस केस में होंगे? इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. सेकंड, their corresponding sides are in the same proportion. Means triangles में जो sides है, ठीक है, दोनों triangles के जो sides हैं, दोनों का जो proportion होगा, means जो पहला triangle होगा उसमें जो line segment है, जितने भी line segment है first वाले triangle का, वो क्या होगा? second वाले triangle के जितने भी line segment है, दोनों का जो ratio है वो same होगा. ठीक है, और एंगल्स क्या होगा? corresponding angles दोनों ट्राइंगल्स का वो भी क्या होगा? सेम होगा. इन दैट केस टू पॉलीगन्स विल बी सिमिलर. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल की बात कहा जा रहा है. सेकंड क्या है? साइड्स का. साइड्स का क्या है? रेशियो. जो साइड्स है फर्स्ट वाले ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसमें सपोज करो एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा ट्रायंगल है जिसका लाइन सेगमेंट है ए डैश बी डैश. फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी और सेकंड ट्रायंगल का ए डैश बी डैश. ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा? हर लाइन सेगमेंट के लिए सेम होगा. ठीक है, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा. सो इसको नोट कर लेंगे हम लोग. क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. Suppose this is a rectangle ABCD. A second rectangle is such that it lies within the first rectangle and its name is A dash, B dash, C dash, D dash. ठीक है, ये दोनों ही फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइज सेम होना चाहिए. क्या इसका साइज सेम है? नहीं है. दैट मींस साइज सेम नहीं है, दैट मींस कॉन्ग्रुएंट नहीं है. शेप है क्या?
सेम शेप है क्या? हाँ है, शेप तो सेम है, बट इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अगर सेम शेप है then we can say that this is a similar figure। similar figure है, these two figures are similar but not congruent because congruent नहीं है because of this various type, but shape same है, that is why we can say that this is a similar। सिमिलैरिटी देखने के और दूसरा तरीका क्या है? फर्स्ट वन, ABCD is a rectangle, A dash B dash C dash D dash is also a rectangle। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया, दोनों रेक्टेंगल है, इससे क्या समझ में आता है? दोनों का जो शेप है वो सेम है। सेकंड इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इज दैट ये जो रेशियो है AB, इसका लेंथ जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस वाले लेंथ से, तो जो भी वैल्यू आएगा, सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 2। देखो यहाँ पे जो रेशियो है साइड का, अगर इस केस में बोलेंगे, AB के केस में देखो जो रेशियो है 4/2, कितना आएगा? 4/2, 2, ये इक्वल होगा BC बाय B डैश C डैश। देखो यहाँ पे BC बाय B डैश C डैश, यहाँ पर भी जो रेशियो होगा ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ, क्या होगा? यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके? ये वाला जो साइड लेंथ है, कौन सा साइड लेंथ है? ये CD। जब हम CD को डिवाइड करेंगे C डैश D डैश से, then the ratio will be also same। इस वाले साइड की बात करें हम लोग, यहां पर भी क्या होगा? 2/1, कितना आएगा? 2। So in figure 6.5 यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे between these two quadrilaters। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितने हैं? There are 4 sides in ABCD and PQRS। 1 by 1 हम लोग जो क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का उसको चेक करते हुए हम लोग देखेंगे क्या ये सिमिलर फिगर है या कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखते हैं। For congruency कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए? So for congruency these are the requirements, size must be the same and shape must be the same। ठीक है, अब यहाँ पे साइज की बात कर लेते हैं। अब देखो जो साइज है ABCD का, साइज की केस में ABCD का जो साइज है वो PQRS से छोटा है। दिस इज अ शॉर्टर एंड दिस इज अ लॉन्गर। इन द केस ऑफ सेम साइज ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिकॉज जो साइज वो अलग अलग है दोनों का। अगर दोनों का साइज अगर सेम रहता
then we can say that this is a congruent figures. Next we will check the similarity of these figures. क्या ये दोनों सिमिलर है? चलो देखते हैं क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर है कि नहीं। For similarity, what are the requirements? First, शेप जो है सेम होना चाहिए। क्या दोनों का शेप सेम है? हाँ बिल्कुल है, दोनों का शेप सेम है। देखने से तो लगता है शेप सेम है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? So the first criteria in the case of similarity is the first shape must be same. क्या दोनों का शेप सेम है? हाँ शेप तो सेम है। अगला इसमें आता है क्या इसके साइड्स सेम प्रोपोर्शन में है? चलो चेक करते हैं। Now in the next stage we have to check that their sides are in the same proportion. चलो देखते हैं। PQ by AB, चलो इसको देखेंगे। PQ क्या है? 3 सेंटीमीटर है। AB कितना है? दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस एज 2। मतलब जो बड़ा वाला फिगर है, लार्जर फिगर इज 2 टाइम्स द स्मॉलर फिगर। सो साइज ऑफ PQ इज डबल द साइज ऑफ AB। ये यहां दिख रहा है यहां पर। नेक्स्ट, अगर इन दोनों का जो रेशियो है, ये साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड, अगर इसका रेशियो भी ये आता है, सेम आता है, सेम आना चाहिए, ठीक है। फॉर सेम प्रोपोर्शन देयर रेशियो मस्ट बी सेम। रेशियो सेम आना चाहिए हर लाइन सेगमेंट के बीच में। RQ बाय BC, इसका रेशियो क्या होगा? चलो देखते हैं। सो रेशियो ऑफ RQ डिवाइडेड बाय BC, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 5 by 2.5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल आल्सो गेट 2। सो वी आर गेटिंग 2 हियर। नेक्स्ट केस पे देखते हैं। चलो ये वाला साइड के बीच में देखते हैं रेशियो क्या आता है। डिवाइडेड बाय CD, देखो रेशियो क्या होगा? R is equal to 4.8 and CD is equal to 2.4. This is again after simplification we are getting 2 here. यहाँ भी 2 आ रहा है रेशियो। नेक्स्ट इस वाले पोर्शन में देखते हैं रेशियो क्या आ रहा है। PH डिवाइडेड बाय AD, यहाँ पर रेशियो क्या आएगा? चलो देखते हैं। 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1, यहाँ भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग 2। तो जितने भी रेशियोज हैं इन दोनों के बीच हो, चाहे इन दोनों के बीच हो, चाहे इन दोनों के बीच या फिर इन दोनों के बीच, वी आर गेटिंग 2 इन एवरी केस। तो यहाँ ये बात भी प्रूफ हो गया दैट साइड्स रेशियो जो है सेम प्रोपोर्शन में है। यहाँ दोनों बात ही क्या हुआ? सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स ये दोनों फिगर्स क्या है? सिमिलर फिगर्स।
So in figure 6.5 we have to check the similarity criteria of these two rectangles. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला रेक्टेंगल कौन सा है, स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर and this is the rectangle. We have to check the similarity criteria. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का जो शेप है वो सेम है कि नहीं है ये चेक करना है. तो शेप सेम है या नहीं ये मेजर करने के लिए हम इसका रेशियो निकालेंगे. सबसे पहले जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये वाला है. AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, PQ है. एंड BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR and the corresponding side of CD is RS. So we will check here the proportion of the sides, and after this we will check the criteria of similarity. So let's check one by one. First, PQ divided by AB. क्या है इसमें, 3.5 डिवाइडेड बाय 3. दोनों ही सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा है सिर्फ 3.5 डिवाइडेड बाय 3. चलो ये वाला जो रेशियो है वो तो हमने देख लिया. नेक्स्ट BC और QR के बीच में देखते हैं. थ्री बाय 3. यहां पर जो रेशियो है PQ डिवाइडेड बाय AB, ये वाला जो रेशियो है ये अलग है. किससे अलग है, QR डिवाइडेड बाय BC. इससे जो रेशियो बन रहा है इससे अलग है. दैट इज व्हाई दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर. सिमिलर नहीं है ये दोनों फिगर बिकॉज यहाँ पर हमें अलग अलग रेशियो मिल रहा है साइड्स पे. Now look at the figure number 6.7. Here two quadrilaterals of equal number of sides are given. We have to check here if these two figures are similar. So let's check it. Similarity check करने के लिए हम क्या करते हैं, we determine the ratios of corresponding sides. तो यहाँ पर देखिए लाइन सेगमेंट्स के बीच का जो रेशियो है, जैसे कि QR डिवाइडेड बाय AB, दिस इज 4.2. क्या है यहाँ पे 2. यहाँ पर देखो जो रेशियो है QR डिवाइडेड बाय AB कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. इन द केस ऑफ RS डिवाइडेड बाय BC ये भी क्या आएगा, 2 आएगा. सो बेसिकली यहाँ पे रेशियो जो है सेम है, सेम रेशियो है. ठीक है ना. तो यहाँ पर रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो काम नहीं करेगा. व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट? In order to find the similarity of two figures, we have two statements. First one was their corresponding angles must be the same, and second their ratio of sides must be same. तो यहाँ पे same ratio तो है, but क्या ये similar है? देखने से तो नहीं लग रहा है. तो इसके लिए हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे. कौन सा, एंगल्स, corresponding angles. यहाँ पे कितना एंगल है, 90. यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 एंगल. ठीक है. यहाँ पर देखो दिस इज नॉट 90 डिग्री, ऑल्सो दिस इज नॉट 90 डिग्री.